ثقتي ومعتمدي مسلم ابن عقيل. یہ وہ فطرے جس سے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو جب خط لکھا تو اس میں جناب مسلم بن عقیل کے مطابق میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف وابنا امی اپنے چچا زاد بھائی ثقتی و معتمدی. میرے دوستوں یہ بہت عظیم مرتبہ ہے جناب مسلم بن عقیل کا. امام جسے کہیں کہ یہ میرا معتبر، امام جسے کہیں کہ یہ میرا ثقہ قابل اعتماد ہے. آج کا دن آپ جانتے ہیں دو مناسبتیں ہیں. ایک وہ مناسبت جسے ہم آپ صبح سے ماتم کرتے ہوئے جنت کی شکل میں جو تابوت لے کے آئے. ایک اور مناسبت ہے جسے ہم آپ بہت کم ذہنوں میں رکھتے ہیں. مجھے تھوڑا سا معاف کیجیے گا اگر 5 منٹ زیادہ آپ کا وہ ہے آج کا دن جسے روز عرفہ کے نام سے. دیکھیے دوستو، آج میدان عرفات میں تقریباً سناٹا. آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی سعودی حکومت نے اجازت دی ہے، مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا. میدان عرفات میں واقع آج سناٹا، وہ عرفات جو بھرا رہتا آج خالی ہے. اور اسی عرفات میں ایک دعا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، جسے دعائے عرفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میں تاریخ میں دعائے عرفہ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ عصر کے بعد. راوی کہتا ہے میں نے فرزند زہرا کو دیکھا کہ عصر کے بعد میدان عرفات میں تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کے پروردگار سے راز و نیاز مفصل دعا ہے میرے دوستوں. اور آج کے دن تمام فقہا کا یہ مسلم فتویٰ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا کے پڑھنے میں آپ کو ضعف اور کمزوری محسوس ہو تو آج کے دن حکم یہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیے، دعا پڑھیں. یہ دعا بڑی اہم عبادت ہے، دعا بڑی عظیم عبادت ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں سیدھے سیدھے کہا ادعونی، مجھے پکارو. وقال ربکم ادعونی، ہے تم مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. آپ دعائے کمیل میں دیکھیے کیا ہے، وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِ، پروردگارہ تو نے حکم دیا ہے دعا کا. وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، تو ضامن ہوا ہے دعا کے قبول کرنے کا، پروردگار نے ضمان. اور آج کے دن بالخصوص جو شب گزری ہے اور یہ جو دن ہے، یہ دونوں بڑے عظیم شب ہیں. میں نے روایت میں دیکھا جو شخص ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اسے آج کے دن آ کے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا نہیں. اس سے بڑھ کے روایت دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام ہے. آپ نے دیکھا کوئی سائل آج کے دن کوئی سائل کسی سے کچھ مانگ رہا ہے، امام کی نظر پڑی، امام نے کہا واحد ہو تجھ پر، آج کے دن تو بندوں سے مانگ رہا ہے. یہ ہے اس دن کی اہمیت. یہ حد گناہ معاف کیے جاتے ہیں. بالخصوص بھائیوں کے لیے اپنی دعا کیجیے. دیکھیے دعا کے آداب اور طریقے، اور بالخصوص سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دعا جو اسی جگہ اسی مناسبت سے برپا کی جائے گی انشاءاللہ 3 بجے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیجئے میدان عرفات کو ذہن میں رکھ کے آئیے کہ اگر وہاں خالی ہے تو کم از کم جو یادگار کربلا ہے اسے ہم خالی نہیں رکھیں. یہ میرا خاص طور سے نوجوانوں سے ایک مطالبہ. کیوں آج کے دن دعائے عرفات؟ دیکھیے جب تک عرفان نہیں ہے تب تک انسان مسلمان نہیں بن سکتا، مسلم نہیں بن سکتا. مسلم بننے کے لیے عرفان الہی ضروری ہے، اور عرفان الہی تبھی حاصل ہوگا جب عرفان نبوت اور امامت دونوں ایک ساتھ ہو. میں نے بات مکمل کر دی میرے دوستو. آپ سے ایک
बात और जिक्र करना है, वो ये है कुर्बानी से मुताबिक। देखिए याद रख लीजिए, आज जो आप बैठे हुए हैं दीबाचे करबला सफीर हुसैन, मैं लफ्जों को बदल कर यूं कह दूं, करबला की सबसे पहली कुर्बानी जनाब मुस्लिम बिन अकील। और इसके बाद जो आने वाला जो दिन है वो कुर्बानी का दिन है, जो सुन्नत इब्राहिमी है। ये सुन्नत इब्राहिमी जो हम करते हैं ये मुस्तहब है। यहाँ हम जो कुर्बानी करते हैं, मुझे बड़े दिन से मेरे जहन में एक बात खटक रही थी और हर दफा जहन से निकल जा रही थी। आज जनाब मुस्लिम बिन अकील की तरफ से ये तोहफा है जो मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ कि वो ये है कि कुर्बानी जब हम आप करते हैं राह खुदा में जो चीज देते हैं, देखिए ये जो बकरा लाया गया है राह खुदा में देने की है। अब जब आप राह खुदा में इसके देते हैं, अब ऐसा ना हो कि इसके देखिए 3 हिस्से किए जाते हैं, एक गरीब फकरा का है, एक आम मुसलमानों का है और एक अपने लिए। सही है, ये हिस्से किए, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें वो हैं कि जिनका खाना हराम है। आप तौजील मसाइल जानते हैं, मैंने बसा औकात सुना है कि बाद लोग ये सोचते हैं कि कुर्बानी का बकरा है, इसकी जितनी चीजें सब खाना जाएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, 14 चीजें आप आगा सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के तौजील मसाइल पर निगाह कीजिए, 14 चीजें वो हैं कि जिसका खाना हराम है कुर्बानी का। ये ना सोचिएगा क्या तो कुर्बानी का है, खून खा सकते हैं, फुजला खा सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं खा सकते, न खून न फुजला न पित्ता न इसके अलावा मसाना न बच्चेदानी अगर बकरी है, या इसके अलावा फर्ज कर लीजिए जो कपूर आप जिसको बैदे कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी में जो पाए जाते हैं गुदूद, ये तमाम वो चीजें तौजील मसाइल में वो 14 वो चीजें हैं कि जिनका खाना क्या है। सबसे जो अहम बात जो मुझे जिक्र करना वो ये है, लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी का खून नजीस नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा आप लोग, मैंने देखा है और मैंने यहाँ भी अपने मौजा कटगर कमाल में सुना, तब ये बात जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने सुना है कि लोग उसके खून को लेते हैं और बरकत के लिए ले जाके अपने घरों में जो है वो क्या लगाते हैं, पंजे लगाते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है मेरे भाई और बुजुर्ग सुने, और ये नजीस है, इसलिए कि खून जहिंदा ये मुसल्लम, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वाक़ईन जो खून ज़िबा किया, जो ज़िबा करते वक्त जो खून निकलता है जिसे खून जहिंदा कहते हैं, यह खून नजीस है। हाँ, वो खून जो ज़िबा करने के बाद, खून निकलने के बाद अगर अंदर कुछ खून रह जाता है वो पाक है, लेकिन पाक का मतलब ये नहीं है कि खाना हलाल है, वो खाना खून का हराम। अच्छा, करते क्या है लोग, पंजों के निशान बरकत के लिए घरों में लगाते। अच्छा, जरा सा आप अंदाजा करें है नजीस की नहीं, इतनी बात तो मुसल्लम है। ये बताइए, नजीस चीज घर में रखिएगा, मलाइका आएंगे, बरकत होगी? आप तो अपने घर में नौसत का जमघटा कर रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग, मैंने यहाँ हद ये हो गई है, आपके जिला अकबरपुर में मैंने एक मस्जिद में देखा खून लगा हुआ, पंजा लगा हुआ। मैं वहाँ नमाज पढ़ने के लिए गया, मैंने कभी पूछा ये क्या है, कहने लगे साहब ये कुर्बानी का खून है और ये बरकत के लिए। हमने कहा अल्लाह का घर और बरकत, आप अपने घर में बरकत सोचिए, यहाँ बरकत की क्या जरूरत है, यहाँ बरकत की क्या जरूरत। तो लेना है नजीस, कहीं भी आप लगाइए, चाहे यहाँ, चाहे मसाजिद, चाहे इमाम बारगाह, चाहे अपने घर, चाहे अपनी दाला, नजीस है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों। कतई ये ज़हन में तसव्वुर न रहे कि यह चीज चूंकि कुर्बानी हमने कर दी है, राह खुदा में दे दिया है, हर चीज उसकी पाक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत जरूरी एक बात जिक्र करना थी, जहनों तक पहुंचाना था, इसलिए कि ताकि ये जो फिजा आई है दूसरी जगह से, हमारे यहाँ की ये मखमून फिजा नहीं है, ये आई है पाकिस्तान से। वहाँ तरीका ये है कि जो कुर्बानी ज़िबा की जाती है, वहाँ जितनी चीजें हैं सब उसकी पाक समझी जाती है। हाँ, हत्ता खून को भी वो लोग जाया नहीं जाने देते, एक कटोरे में या गिलास में जो भी सर्फ होता है उसमें लिए रहते हैं, उसके बरकत के लिए जगह जगह जो है वो लगाते हैं। दरअसल कि जो नजीस है यकीनन वो नजीस है, उसमें कोई बरकत नहीं। ये दो बात। आखिरी जो बात मुझे जिक्र करना है वो है जनाब मुस्लिम बिन अकील। याद रख लीजिए, निहायती सजा और बहादुर, निहायती सजा और बहादुर इंसान। पता करे कि हमारे समाज में ये बीमारियां न पाई जाती,
कि जो हम लोग सुनते रहते हैं, सिर्फ सुनने ही के हद तक रहे, अमल की हद तक न रहे। खुदाया ये याद रखिए, जनाब मुस्लिम बिन अकील किसने भेजा? इमाम। आप जानते हैं हालात कितने पुराने हैं? कूफे से कितने खतूत आए हैं? 18,000 खतूत। मैं दो जुमले मसाइब के साथ नहीं पढ़ूंगा, 18,000 खतूत आए। और उसके बाद जब इमाम ने हज, ये जो मौसम है ये अय्याम हज के, आप जानते हैं, आपने हज को उम्रे में तब्दील किया और उसके बाद खाने काबा को खुदा हाफिज करना चाहते हैं। लेकिन खतूत के जवाब के तौर पर जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ये भैया आप कूफे जाइए और वहाँ के हालात से मुझे बाखबर ले तोबैया ना, आप मुझे बयान कीजिए, आप मुझे खबर दीजिए। मैंने दोस्तों मंजिल तमाम कर दी। बाद ज़मीर फरोश मुर्रिखों ने जनाब मुस्लिम बिन अकील के किरदार को मखदूश किया, बिलखुसूस इनके वालिद माजिद जनाब अकील को। ये जो कहा जाता है कि जनाब अकील माविया अलैहिल हाविया की तरफ चले गए थे, कसम बखुदा झूठी तारीफ। और जनाब मुस्लिम बिन अकील जब तक अमीर कायनात बाहयात थे तब तक कभी भी दरबार माविया तक नहीं गए। आज मैं यह जो बात कह रहा हूँ ये तहकीकी बात है, जिसको भी इस सिलसिले में रिसर्च करना हो कर ले। इमाम की शहादत के बाद गए, और क्यों गए पता है? सिर्फ फज़ाइल अली को नशर करने। मुतादिद वाक़यात हैं इस सिलसिले में, मुझे वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं बात को समेटना चाहता हूँ। उसी अकील की औलाद जनाब अकील का किरदार बेहद मखदूश किया गया तारीख ने कि जनाब अमीर कायनात से ज्यादा माल मांग रहे थे और वो गर्म लोहा दिखाया। ये जितनी भी तारीखें हैं, अगर जरा सा दिक्कत कीजिए, ये अमवी खानदान से ये गड़ी हुई रवायतें हैं, इस पे हम लोग जिक्र कर देते हैं, बयान कर देते हैं। हमारे यहाँ मौरखीन ने भी इसको लिख रखा। उसकी वजह ये थी कि उनके हाथ में हुकूमत थी, जो चाहते थे लिखवा देते थे। लेकिन एक बात ज़हन में रहे, अबू तालिब का खून जिन रगों में है उनमें वफा पाई जाती है, दीन और शरीयत से। और इसीलिए बात ज़हन में महफूज रख लीजिए, वाक़ियन औलाद अकील जिस तरीके से मैदान करबला में हाजिर थी, जितने भी आल और औलाद जनाब अकील के, जनाब मुस्लिम के भाई और बेटे जितने थे, सब मैदान काबा नहीं। बल्कि मैं एक जुमला और कहना चाहता हूँ, जब जनाब अकील मक्के जा रहे थे हज करने के लिए, अमीर कायनात हयात थे, ज़हाक जो अमीर शाम का एक जो गुलाम था, और वो हमला करने के लिए और शिया नशी इलाकों को बर्बाद करने के लिए जा रहा था। जनाब अकील ने फौरन वहीं से अमीर कायनात को खत लिखा और एक जुमला कहा कि ये मेरे मौला, ये मेरे आका, अगर आपको खतरा हो और आप जिहाद करने के लिए निकल रहे हो तो मुझे इजाजत दीजिए, अकील आपका भाई, मैं अपनी आल और औलाद के साथ आपके साथ आया। मैं नहीं जानता वाकई जनाब अकील के अंदर कैसा ये जज्बा था। और ये जज्बा नहीं, बल्कि मैं और एक लफ्ज कह दूं ताकि आपकी आंखें अश्कबार हो सके। खुद अमीर कायनात ने जनाब अकील ही को तो कहा था, ऐसा खानदान बताइए कि जिस खानदान में मैं शादी करूं, ऐसा बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में काम आ जाए, जो करबला में काम आ जाए। आप अंदाजा कीजिए, अमीर कायनात के जनाब अकील से कह रहे हैं, क्या अकील के दिल में यह तमन्ना नहीं पैदा हुई होगी? यकीनन अकील के दिल में तमन्ना थी, जब तो जनाब मुस्लिम बिन अकील को परवान चढ़ाया अपने लाल मुस्लिम को, और इमाम ने भी इंतखाब कर लिया। अब मैं आना चाहता हूँ मसाइल की तरफ। इन सख्तियों को तय करके जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे। कई और साथी सब शहीद कर दिए गए, सब रास्ते में कैद हो गए। जनाब मुस्लिम बिन अकील थे, और जनाब मुस्लिम बिन अकील को सबसे पहली जो मुसीबत करबला से जाने के बाद कूफे पहुंचने में जो सबसे पहली मुसीबत थी, वो क्या है? वो है प्यास। तो मैंने मंदिर जब जनाब मुस्लिम अपने आका के अम्र को, पैगाम को पहुंचाने के लिए कूफे जा रहे थे, मैंने मतलब में देखा सबसे पहली मुसीबत जनाब मुस्लिम पर क्या थी? प्यास। और ऐसी शदीद प्यास जनाब मुस्लिम बिन अकील को थी कि जनाब मुस्लिम बिन अकील
प्यास से बेचैन थे। हाँ, जनाब मुस्लिम बिन अकील शजाअत और बहादुरी से आगे बढ़ते हुए पहुंचे, कूफा पहुंचे, इमाम का पैगाम पहुंचाया, मुख्तार के घर रहे, मुख्तार के बाद जनाब हानी के घर आए, जनाब हानी के बाद मुस्लिम बिन औसला के घर आए। ये 3 या 4 तारीख में नाम है जहाँ जनाब मुस्लिम बिन अकील हर एक के घर रहे हैं। कूफे के हालात पुराशोभ है मेरे दोस्तों। आज की तारीख में 2 जुमले मैंने आपसे वादा किया था, 2 जुमले मंजिल तमाम कर देना चाहता हूँ। आज आप समझते हैं आज कौन सा दिन है? आज मुस्लिम बिन अकील की शहादत का दिन। मेरे दोस्तों ये न सोचिएगा कि आपका आका मुस्लिम की शहादत से गाफिल है। सरकार सैयद शुहदा मक्के से रवा दवा हो चुके हैं। रास्ते में एक मर्तबा नजर पड़ी तो कूफे से 2 सवार आ रहे हैं। आवाज दी, भैया अब्बास देखो लगता है ये कूफा से आ रहे। जनाब अब्बास बढ़े, जनाब अली अकबर बढ़े, बढ़ के उन मुसाफिरों को रोका कि भैया भाइयों कहाँ से आ रहे हो? हमारे आका ने तुम्हें याद किया है। दोनों मुसाफिर इमाम के कदमों पे आके अपने सर को गिरा दिया। आका ये गुलाम हाजिर है। इमाम ने पूछा ये बताओ कहाँ से आ रहे? कहा था कूफे से आ। सुनोगे मेरे दोस्तों, कहा एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ मेरे भाई मुस्लिम की क्या इतना कहना था कि सर को झुका लिया मुसाफिरों ने, हाथों को जोड़ा, आका गोशे तनाई में आइए तू कुछ आज से जिक्र करे। इमाम ने कहा ये मेरे सब राजदार हैं। मैं एक मर्तबा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए आका जब हम कूफे से चले थे मुस्लिम के गले, मुस्लिम के पाँव में अरे रस्सी का फंदा था। जालिम लाशें मुस्लिम को कशा कशा कूफे की गलियों में खींच रहे थे। अरे मैंने तो ना कहना था कि आप पास अलमदार तड़प गए। ए आका अरे अगर इजाजत हो तो मैं अपने भाई का बदला ले लूं। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। एक जुमला और सुन लीजिए, मंजिल तमाम है। इधर इमाम ने जनाब अब्बास को ताज़ियत और तस्लीयत दी। उसके बाद सीधे खेमे में आए। आने के बाद आवाज़ दी है बहन ज़ैनब मुस्लिम की लाडली को मेरे पास पता जुमले मंजिल तमाम। जैसे ही दुख्तरे मुस्लिम इमाम के पास पहुंची, इमाम ने बानू पर बड़े अदब से बिठाया, बच्ची को प्यार किया, सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा। बच्ची खानदान इस्मत की थी, समझ गई कि लगता है कि वो यतीम हो गई। एक मर्तबा हाथों को जोड़ा, आंखों में आंसू भर आए। चचा क्या मैं यतीम हो गई? चचा क्या मैं बिन बाप के हो गई? तो एक मर्तबा इमाम ने गले से लगा लिया। ए मेरी लाडली, आज मेरा भाई मारा गया, मेरा भाई शहीद कर दिया गया। ए दुख्तरे मुहतरम, आज से तुम मुझे अपना बाप समझना। ए आका अरे आज आप दुख्तरे मुस्लिम के साथ ऐसी नवाजिश कर रहे कहीं सकीना न देख ले। अरे यही तो हुआ जब ही तो करबला के मैदान में जब बाप घोड़े पे सवार हो के अरे जाने लगे, सकीना तुम बहुत लिपटी भाई। ए मेरे बाप आके घोड़े, मेरे बाप आके न ले जा। इसीलिए सकीना ए